So welcome you all to another campus tour video of GMC Mumbai GT and Kama Albles Hospital. So in this video, we will take a detailed overview of the campus of GMC Mumbai and also know more about the fests, events, campus amenities, facilities and the academics at GMC Mumbai GT and Kama Albles Hospital. And just believe me guys, if you will watch this video till the end, you won't even have to visit this college in person before admission. You will have more information than a person who visited this college through this video. So this college is located in the fort area which is called the heart of South Mumbai. CSMT railway station, which is the major railway station in Mumbai, is just 1.5 kilometers away from here. This area harbors nearby tourist locations like Gateway of India, which is 4 kilometers away, and Marine Drive, which is just 1.2 kilometers away. So starting with gate number 2, which is the main entrance gate of Kama and Albles Hospital. So hello guys, as in the introduction you must have seen that today we are going to give a campus tour of GMC Mumbai GT and Kama Albles Hospital. Hello, myself Ankit. I'm first year MBBS in GMC Mumbai GT and Kama Hospital. Myself Rohan Pawar, so second year MBBS student at GMC Mumbai GT and Kama Hospital. Hello everyone, myself Rohit Aire. I'm second year MBBS student in GMC Mumbai GT and Kama Hospital. So hello guys, I am Ayush Chaudhary, second year MBBS student at GMC Mumbai GT and Kama Hospital. So हम अभी गेट नंबर 2 के सामने खड़े हैं कामा हॉस्पिटल के. हम इधर राइट से जाएंगे तो जब हॉस्पिटल की मेन बिल्डिंग है उसके 6th फ्लोर पे फर्स्ट ईयर का क्लासरूम है और उसके सामने के बिल्डिंग में फर्स्ट ईयर के एनाट बायोकेम और फिजियोलॉजी के लैब्स है. तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है डॉक्टर जमुना भाई देसाई मेमोरियल. उसी के पीछे हमारा सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल है, यानी पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी का प्रैक्टिकल हॉल है. यहाँ पे हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं. सो लेट्स मूव टू फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल हॉल. So before going to the first year practical halls, we will introduce our main hospital building and other infrastructure included in the Kama Hospital to you guys. So this is our hospital building. याच्या 6th फ्लोअर वरती फर्स्ट इयरचे लेक्चर्स सुरू आहेत आणि ते तिथे शेड्यूल होतात. जस्ट माझ्या मागे तुम्ही पाहू शकता कामा हॉस्पिटलची OPD बिल्डिंग आहे. तिथे सगळे पेशंट्स वगैरे तिथे येतात. सो इन फ्रंट ऑफ द कामा हॉस्पिटल वी हैव दिस मेमोरियल. तो जैसे आप जानते हैं कि 26/11 के समय कामा हॉस्पिटल में भी अटैक हुआ था. तो उस दिन हमारे 2 जवान शहीद हुए थे, जिनको श्रद्धांजलि देने के लिए हमने यहाँ पे मेमोरियल बनाया है. चलते हैं हम हमारे फर्स्ट ईयर के लैब में. So we have these 3 labs. Currently we have the biochemistry lab closed, so we'll go for the physio and anat lab. So this is the physio lab. We have all the equipments. So here we have anat histo lab. So in anat we have mostly 3 parts. There is gross anatomy, then there is histo lab where we have usually histo practicals. We see different slides of the microanatomy. Then there is gross anatomy where we have a different hall for the dissection, and there are different models for the embryo. काय रे, फर्स्ट इयरचं आठवतंय का काय? हो मग मायक्रोस्कोप बद्दल बघ, हे बघ, हे आयपीस आहे, ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स आहे, फोर्स ॲडजस्टमेंट आहे, नंतर फाईन ॲडजस्टमेंट आहे, हे स्टेज आहे, हे कंडेन्सर आहे, हा लाईट सोर्स आहे त्याचा. बस. चल, माझ्या मागच्या साईडला कामा हॉस्पिटलची OPD बिल्डिंग आहे ना, आणि त्याच्या मागच्या साईडला फर्स्ट इयरचा डायसेक्शन हॉल आहे. आणि जसं की तुम्ही बघू शकता, पेशंट फ्लो कामा हॉस्पिटलचा जास्तच आहे. So we are at the Kama Hospital main building on the 6th floor, and this is the lecture hall for the first year, and we'll get into it.
here we are in the first year lecture halls on the 6th floor. So यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट ईयर का लेक्चर हॉल है. इधर पूरा हॉल में प्रॉपर AC है और प्रॉपर से वेल मेंटेन्ड है. Now coming to the academics, both first year and second year के लिए well structured labs available है practical के लिए. Both faculties बहुत ज़्यादा approachable and friendly है. And faculties, most of the faculties जे हॉस्पिटल से जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं एक्सपीरियंस हुआ है. बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस फैकल्टी है. लेकिन बैचेस दोनों छोटे 50-50 के बैचेस होने के कारण टीचर्स को ज़्यादा इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है. एंड ज़्यादा स्टूडेंट्स को भी अप्रोच कर सकते हैं टीचर्स को. So guys, now let's move to second year departments, where Rohit will introduce you to the departments and what all practical halls they are having over here. So as we enter from the gate number 2 of the Kama Albles Hospital, we can see our practical halls are there. So let's go and see practical hall. So these are our practical halls. This is of microbiology, this is of pathology, this is pharmacology, and that is for third year FMT subject practical hall. So now after completing Kama Hospital campus tour, let's move to GT Hospital. So over here we have our gate number 3 of Kama Hospital, and just besides it we have a road that connects CSMT to Kama Hospital. So CSMT is the nearest railway station, and it is very easy for the students to access everywhere in Mumbai through the railways and local. As said, CSMT is just 200 to 200 meter away from both the hospitals, and it is very easy and helpful for the students to access the nearby transports. And you can travel in everywhere in Mumbai from CSMT with local. So this is our hostel building. So below this we have a ground where we can play football or cricket. Mostly we play cricket, but as you can see currently we are playing football. So from there is the main hospital building and our second year lecture hall. Now let's move to the main entrance gate of Gokuldas Tejpal Hospital, that is GT Hospital. So we are at the main entrance gate of GT Hospital. It's just beside the Kama Hospital. We will cover the second year lecture halls, both boys hostel and girls hostel in this section. So let's move to the main hospital building. So after entering the main entrance gate, we have the OPD building here, which has the great patient flow. If you are looking for the good patient flow and patient exposure, you may choose this hospital and this college. And also, the girls' hostel is situated on the 4th floor of this OPD building. So here we are at the academic block in GT Hospital. It includes the second year lecture hall and all the administrative offices. So I will show one by one to you. Left side we have the second year lecture hall, which have the centralized AC and all equipped. It is well maintained hall. So I will show you the hall. Over here we have the medical store, which is under the pharmacology department. And all the administrative offices are just behind it. So on my left back side we have the inserts office, and the same path on the right side connects to the emergency ward of the GT Hospital. As a part of Institute's future expansion plan, a separate building has been proposed to further strengthen the academic and the student facilities. The project is currently under the administrative and official approval process, and the final handover is pending completion of the necessary formalities.
So just beside the main building, just we saw, we have the canteen construction going on in the same campus of GT Hospital. So it is under the process of the construction. So it will start soon. So you have finally covered neat. So beside the main OPD building of GT Hospital, we have our boys hostel situated in the same campus and the playground. I'll show the tour of the boys hostel. Let's. So we are at the main entrance gate of the boys hostel. First, at the ground floor, we have the table tennis room for the students to play. So this is the main entrance of the boys hostel. We have 2 floors in this hostel. The first floor is allotted to the first year students, 2025 batch, and the second floor is allotted to second year students, which is 2024 batch. Both the floors have the common rooms associated with it. The second floor have the common TV, and the first floor common room is associated with the sports equipments. So here we are at the boys hostel. So accordingly there are 15 to 20 rooms on a floor, and first year is on the first floor and second year is on the second floor. So accordingly there is good cleanliness and there are also water supplies. There is also a water cooler. We will ask the first year students about all the facilities that are provided over here. We have Siddhant and Rushikesh with us. We will ask them about the facilities provided. So here we have in campus hostel, and we have 14 to 15 rooms on the floor for the students, and each room has 2 students and it has good accommodation. The college has given the 1 cupboard and 2 tables and 2 chairs, and the bed has a mattress and a pillow, and it has the hostel also has a good electricity supply, and the 24/7, and the cleanliness is done daily almost, and the washrooms are clean, and the playground is here for you can chill here after your exams. Yes, we have here hostel ground. You can play here the games you like cricket, volleyball, etc. Thank you. So you can also tell about the other facilities. So the hostel has good ambience, there is good atmosphere, and there is every room has clear ventilation, and everything is near to the hostel. We have the Aqua Line, the CSMT station. Everything is near, so you can traverse around. South Mumbai very easily, and he covered everything. Yes, and there are many more places to. You can explore many more places here nearby, like Marine Drives and all other places. Gateway of India. They are the most common to explore and chill out with your friends. And you can also go to other the museums and explore the food places like Prakash Dosa and all. So this is the main South Bombay. So you can. Yes. You are very lucky to get if you do come here. So that's all. So now let's move into a hostel room and show you what all facilities and furniture is provided by the hostel. So this is my hostel room. It accommodates 2 people. To my side, this is my roommate side. So as Rushikesh had mentioned before, we have 2 tables, 2 chairs, 2 beds, and the hostel also provides us 2 mattresses and 2 pillows. And with that, we also have a cupboard, which originally is supposed to be 2, but for now we only have 1. Our seniors have 2. So we have divided into 2 compartments, mine and my roommates. So we can arrange your aprons, shirts, your brush ka saman, wo sab. And this is my table, and you can install your mirrors, your kettle if you want one. And here you have the window, and you can install some miscellaneous stuff which you need for your hostel life. And so hostel provides us 5 sockets to charge your phone and laptops, and there's also a switchboard for repairing and stuff. And the hostel provides us 2 light bulbs and 1 fan, so we don't need to buy anything. The hostel is giving us everything. फिर देखते हैं मेरे रूम. So this is a proper room for accommodation of 2 students. तो यहाँ पे 2 बेड देख सकते हैं आप 2 स्टूडेंट्स के लिए, और एक कबर्ड है, और ये एक कबर्ड 2 जन में शेयर किया गया है, एक साइड मेरा और एक साइड मेरे रूममेट का.
और यहाँ पे हमारा स्टडी टेबल और ये चेयर दिया गया है। हाँ, और जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे स्टडी टेबल और चेयर दी गई है। और यहाँ पे एक ख़ास बात ये है कि यहाँ पे जो विंडो है यहाँ पे आप ओपन कर सकते हो और यहाँ से आप अपने स्टडी टाइम में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से आपको सीधा फ्रेश वेंटिलेशन मिलेगा और यहाँ पे आप बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हो। सो ये है मेरे रूममेट का स्टडी टेबल और ये है मेरा स्टडी टेबल। तो यहाँ पे मोस्टली बुक्स रखता हूँ और जो मुझे स्टडी करना है वही रखता हूँ। और उसके अलावा फ़ैन भी अच्छा खासा दिया है और वो वहाँ पे एक पैसेज है, वो मेरे और आगे वाले ए विंग के दोस्त के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। एक्चुअली वो क्लोज़ होता है बट मेरे रूम का ओपन है, बट ठीक है, उसका कोई इतना इशू नहीं है। और जैसे कि देख सकते हैं आप कि बुक्स तो बहुत सारी है, तो समझ लेना पढ़ाई भी उतनी है फर्स्ट ईयर में। और उसके अलावा हाँ, मतलब बाकी ईयर्स में भी है ठीक है। और उसके अलावा बहुत अच्छा, मतलब सब, मतलब एकोमोडेशन तो अच्छा ही है यहाँ पे, ऐसा ख़ास कोई इश्यू नहीं है। और उसके अलावा बाथरूम्स भी बहुत क्लीन है, मतलब आपको कोई ऐसे क्या बोलते हैं नहीं आएगी, मतलब ऐसे कोई बुरी फीलिंग नहीं आएगी, क्रिंजी फीलिंग नहीं आएगी। या फिर आप और अगर कुछ रूम के बारे में बताना है तो क्या ही बचता है फिर, इतना ही बता सकते हैं। एकोमोडेशन कबर्ड खोल के दिखा कुछ ऐसे सारा डाल दिया उसे। एक कबर्ड दिखा सकता हूँ, ये है मेरा कबर्ड, ये वाला कबर्ड मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पे आप अपना जो भी है शर्ट्स प्रेस करके यहाँ पे हैंग कर सकते हो, या फिर मेरी तरह ऐसे रख सकते हो फोल्ड करके। और आपके पास अगर परफ्यूम कलेक्शन है तो आप यहाँ भी रख सकते हो और अपने बुक्स भी रख सकते हो। दूसरा मत देखो दूसरा ना देखो तो ये अच्छा है, ये मेरा नहीं है, ये वाला मेरा है, ठीक है। ऐसे कोई नहीं कि आपका रूम इतना अच्छा ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ये बॉयज़ हॉस्टल है और बॉयज़ कभी ऑर्गेनाइज होते हैं यहाँ पे मैंने तो कभी नहीं सुना, मैंने रखा है ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि मुझे थोड़ा आदत है, मतलब थोड़ा क्लीन रखने की चीज़ें आदत है। सो रेस्ट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू टू हाउ टू कीप योर रूम एंड हाउ इन्वायरमेंट टू डू यू वांट टू मेंटेन इन योर रूम, सो एज मतलब मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आपको आ जाए गेम खेलने में, पढ़ाई में, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। तो मे बी आपको ये हॉस्टल अलॉट हो सकता है, अगर नहीं भी होगा तो भी दूसरा अगर अलॉट होगा तो वहाँ भी ऐसे ही रूम से, यही साइज़ के रूम से और यही अरेंजमेंट है रूम्स का, तो कोई इशू नहीं। So now let's ask Rohan about the different fests, events, campus facilities and academics of GT Hospital. So first of all, tell us about the fests. What all fests? काय fests होते तुमच्या कॉलेजमध्ये? सो आत्ता हे नवीन कॉलेज आहे, जस्ट रिसेंटली 2 वर्षापूर्वी चालू झालं आहे, त्याच्यामुळे फेस्टचं इतकं काही कल्चर वगैरे आणखी स्टार्ट नाही आहे तितकं. तरी आम्ही रिसेंटली रणभूमी असेल जो की स्पोर्ट्स इव्हेंट आहे, नंतर अंतरंग असेल. अंतरंग हा कल्चरल इव्हेंट आहे GMC मुंबईचा, आणि आम्ही बाकीचे फेस्टिवल्स जसे की गणेशोत्सव असेल, नवरात्री असेल, ह्या वर्षीपासून स्टार्ट करतो की आम्ही ते जास्तीत जास्त फेस्टिवल सेलिब्रेट करूत. ओके. सो स्पोर्ट्सचा तुमचा कुठला फेस्ट झाला होता बोला? रणभूमी झालेला. तर त्याच्यात कुठले गेम्स ऑर्गनाईज झाले होते? तर रणभूमी हा स्पोर्ट्स इव्हेंट जनरली जानेवारी एंड टू फेब्रुवारी स्टार्ट वीकमध्ये 1 वीकचा हा प्रोग्राम होतो. ह्या वर्षीचा रणभूमी इव्हेंट हा 7 दिवसाचा झाला होता. तर त्याच्यात आम्ही डिफरंट लाईक व्हॉलीबॉल असेल, फुटबॉल असेल, फुटसल असेल, बॉक्स क्रिकेट असेल, टेबल टेनिस असेल, किंवा चेस, कॅरम, बॅडमिंटन असे डिफरंट कॉम्पिटिशन आम्ही त्यात ठेवतो. आणि हा 7 दिवस चालल्यामुळे स्टुडंट्स त्याला खूप जास्त एन्जॉय करतात. आणि कल्चरलमध्ये गणेश उत्सव वगैरे ते अजून
लास्ट इयर गणेशोत्सवमध्ये आमची युनिव्हर्सिटीचे एक्झाम्स आले होते, त्याच्यामुळे लास्ट इयर आम्ही सेलिब्रेट करू शकलो नाही, कारण की आम्ही पहिली बॅच होती आणि एकच बॅच असल्यामुळं लाईक दुसऱ्या बॅचेस नव्हत्या की त्या ऑर्गनाईज करतील. पण ह्यावर्षी आम्ही नक्की करू ते. ह्यावर्षीपासून आम्ही ते कल्चर डेव्हलप करतो की आम्ही डिफरंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करूत. ओके. आणि आता फ्रेशर्स जे नवीन येतील तर तुम्ही फ्रेशर्स पार्टी वगैरे ते ऑर्गनाईज करणार आहे का नाही? हां, नक्कीच. जे नवीन फ्रेशर्स येतील त्यांच्यासाठी आम्ही फ्रेशर्स पार्टी नक्कीच ऑर्गनाईज करूत. आणि आम्ही आतुरतेने वाट बघतो फ्रेशर्सची. ठीक आहे. आणि तुमच्या कुठल्या कॉलेज ट्रिप्स जातात का फर्स्ट इयरमध्ये किंवा सेकंड इयरमध्ये, लांब जातात किंवा जवळ जातात असे, किंवा ऑफिशियल अनऑफिशियल ट्रिप्स वगैरे होतात का? तर सध्या आत्तापर्यंत ऑफिशियल ट्रिप अशी काही कॉलेजची निघलेली नाही आहे सध्या तरी. पण अनऑफिशियल ट्रिप्स अशा डिफरंट ग्रुप्स असतील किंवा स्टुडंट्स ओन त्याच्या डिफरंट लोकेशन्सवर ट्रिपवर जाऊ शकतात आणि गेलेले आहेत खूप जण. ठीक आहे. सो समिंग अप विथ फेस्ट्स अँड इव्हेंट्स, नाव लेट स्टार्ट विथ द कॅम्पस फॅसिलिटीज. तर आम्हाला कॅम्पस फॅसिलिटीज जसे की हॉस्टेलबद्दल पहिल्यांदा तर सांग. हॉस्टेल अलॉटेड होणार आहे का फर्स्ट इयरला, आणि कुठे होणार आहे झालं तर? तर सध्या 2 बॅच असल्यामुळे हॉस्टेल अलॉट झालेलं आहे ऑलरेडी. हॉस्टेलमध्ये 2 फ्लोअर आहेत. फर्स्ट फ्लोअर आणि सेकंड फ्लोअरवर सेकंड इयरचे स्टुडंट्स राहतात आणि फर्स्ट फ्लोअरवर फर्स्ट इयरचे स्टुडंट्स राहतात, जे की व्हिडिओमध्ये ऑलरेडी आपण कवर केलेलं आहे. आपण व्हिडिओमध्ये हे पण कवर केलं होतं की प्रत्येक रूममध्ये 2 स्टुडंट्स अलॉट आहेत विथ ऑल फॅसिलिटीज. पण आय एम नॉट शुअर की नवीन बॅचला हॉस्टेल्स आत्ता तरी कुठे देणार आहेत, पण भेटणार आहेत. पण कुठे भेटतील हे माहीत नाही, कारण की जेवढं अकोमोडेशन आहे त्या हॉस्टेलमध्ये ते सध्या ऑल कवर्ड आहे आणि फुल आहे. त्याच्यामुळे काही सांगता येत नाही की कुठे देतील, पण ते देतील. अदर फॅसिलिटीजमध्ये सेंट्रल लायब्ररी आहे कॉलेजला, जी की हायराईज बिल्डिंगच्या फर्स्ट फ्लोअरमध्ये सिच्युएटेड आहे. देन GTमध्ये एक कॅन्टीन आहे आणि कामा हॉस्पिटलमध्ये एक कॅन्टीन आहे. अशा टोटल 2 कॅन्टीन आहेत. जरी तुम्हाला कॅन्टीनचा म्हणजे असं काही जेवणाचा वगैरे प्रॉब्लेम असेल तर टिफिन सर्व्हिस आहे, जे की डेली टिफिन डिलिव्हर करतात हॉस्टेलमध्ये. ओके. टिफिन सर्व्हिस म्हणजे तू टिफिन सर्व्हिस बोलतो आहे, तर साधारण किती खर्च येतो किंवा टिफिन सर्व्हिसेसला पर मील किती टिफिन सर्व्हिसेस घेतात? तर सध्या इथे 2 ते 3 टिफिन सर्व्हिसेस आहेत जे प्रोव्हाइड करतायत मील स्टुडंट्सला. सो इच वन इज कॉस्टिंग अराउंड ₹100 to ₹120 फॉर इच मील. ओके, दॅट्स ओके. तर मग साधारण लाईक हॉस्टेलचा फॅसिलिटीजचा खर्च तर वाचला आपला, लाईक 4,000 पर इयर इज नॉट दॅट मच. पण आपल्याला एक लिव्हिंगसाठी किंवा नॉर्मली स्पेंड करून किंवा पूर्ण स्पेंड जर का ठीकठाक आपण बाहेर फिरायचे वगैरे पकडले तर 1 मंथसाठी किंवा एका महिन्यासाठी किती खर्च येतो मोस्टली स्टुडंट्सला, किंवा ॲव्हरेज एक मंथली किती खर्च होतो तर ते सांगू शकशील? जर हॉस्टेलची फीस आपण एक्सक्लूड केली आणि बाकीच्या जर लाईक खर्च वगैरे पकडला तर अराऊंड जेवणाचा वगैरे बाकी सगळं खर्च वगैरे मिळून अराऊंड 8K to 10K खर्च जातो महिन्याचा स्टुडंटचा. जेवण पकडून? जेवण पकडून. ठीक आहे. फक्त जेवणाचा किती खर्च येतो आणि टिफिन वगैरे? फक्त जेवणाचा खर्च अराऊंड 7,000 to 8,000 फक्त जेवणाचा खर्च येतो. सो नाउ कैन यू टेल अस अबाउट द एकेडमिक्स, कि ऐसे बोलते हैं कि नया कॉलेज है तो ज़्यादा एकेडमिक फैसिलिटीज़ नहीं होगी या फिर टीचर्स एक्सपिरियंस नहीं होगे, तो तसा काय प्रॉब्लेम आहे का? तसा तरी काही प्रॉब्लेम आलेला नाही आहे आत्तापर्यंत की अकॅडमिक्समध्ये काही इश्यू असेल, तसं तर काही झालेलं नाही आहे. सगळ्या फॅकल्टीज हा एक्सपिरियन्स्ड आहेत आणि हे हॉस्पिटल GT हॉस्पिटल असो किंवा कामा हॉस्पिटल असू दे, त्या अगोदर हे दोन्ही हॉस्पिटल जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटलमध्ये असल्यामुळे सगळ्या फॅकल्टीज वगैरे जेच्या आणि बाकीचे जे एक्सपिरियन्स कॉलेज आहेत त्याच्याच जॉईन झालेल्या आहेत. ॲज ऑफ नाऊ अशा फर्स्ट इयरला असो किंवा सेकंड इयरला असो, आत्ता 2 बॅच असल्यामुळे असा काही प्रॉब्लेम किंवा इश्यू आलेला नाही आहे टीचिंगमध्ये असू दे किंवा बाकी प्रॅक्टिकल्स वगैरे असू दे. बाकी लेक्चर्स हॉल सगळे AC हॉल्स आहेत. प्रॅक्टिकल हॉल्स सगळे अवेलेबल आहेत, सगळे लॅब स्टार्ट आहेत ऑलरेडी. आणि पूर्ण फॅकल्टी असू दे किंवा डीन सर और व्हाईस डीन सर सर्व एकदम फ्रेंडली आणि अप्रोचेबल आहेत. दे आर ॲक्च्युली अप्रोचेबल. जाता त्यांना विचारत असते की कसं चालू आहे, अभ्यास करताय का, अभ्यास करा, असं चालू असते. आणि काही स्टुडंट्सला ज्यांना रिसर्चमध्ये किंवा रिसर्च पेपर्स किंवा रिसर्चमध्ये इंटरेस्ट असेल त्याच्यासाठी हे एक एकदम मस्त कॉलेज आहे. फॅकल्टीज खूप जास्त सपोर्ट करतात या गोष्टींना आणि हे सगळे रिसर्च वगैरे पेपर्स वगैरे USMLE असेल किंवा प्लॅब असेल याच्यात CV डेव्हलप करण्यासाठी खूप जास्त हेल्प करतात. आणि आमच्या काही क्लासमेट्सने ऑलरेडी फर्स्ट इयर्समध्येच रिसर्च पेपर पब्लिश केलेले आहेत, त्याच्यामुळे दॅट विल हेल्प यू. ओके.
सो एक लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड यू चूज़ GT ओवर अदर मेडिकल कॉलेज? क्योंकि तुम्हें तो GMC बारामती और अलग अलग दूसरे भी कॉलेजेस मिल रहे थे. मेरा रैंक अराउंड 16 के था और मुझे उस समय घाटी का कॉलेज हो या GMC बारामती हो या सोलापुर हो, ये सब कॉलेज मिल रहे थे उस रैंक पे. लेकिन GMC मुंबई या GT हॉस्पिटल, ये जो कॉलेज था वो उस समय एक न्यू स्टार्ट कॉलेज हुआ था विथ 50 बैच कैपेसिटी. एंड वो एक वो लेने का मैंने लिया क्योंकि एक तो सिटी एक्सपोजर था मुंबई का, बाद में पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा अच्छा था इस कॉलेज का, और ये प्रीवियसली जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में इंक्लूड था. वो भी एक रीज़न है कि मैंने एक कॉलेज चूज़ किया. इस कॉलेज की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा फास्ट है क्योंकि सिटी मुंबई है और मुंबई के सेंटर में, मुंबई का जहाँ पे हर्ट है वहाँ पे ये कॉलेज सिचुएटेड है. एंड बैच भी बहुत छोटे हैं, लाइक 50 के बैच है, तो ज़्यादा इंटरेक्शन का मौका मिलता है फैकल्टीज़ के साथ. तो तूने अच्छी चीज़ें तो सारे बता दिए अपने कॉलेज के बारे में, पर जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं अभी, आप स्टूडेंट लोग जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं आपके कॉलेज बिल्डिंग के बारे में, या फिर नया कॉलेज है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, तो वो भी एक बार उनको नोन कर दो ताकि उनको भी हेल्प मिले और उनको ऐसे ना लगे कि बस अच्छी चीज़ें बताए और बुरी चीज़ें कुछ बताए नहीं, बस वीडियो में एक बायस नहीं होना चाहिए. सो बेसिकली 2024 में जब हमारा बैच स्टार्ट हुआ था तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन वो अभी पूरी तरह से निगलेक्ट हो चुके हैं. मतलब सो एज सच कॉलेज में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं हो रही. सबसे मेजर प्रॉब्लम थी कि और है भी अभी कि कॉलेज बिल्डिंग अभी अलॉट नहीं हुई है. अभी भी फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स कामा के 6th फ्लोर पे होते हैं एंड सेकेंड ईयर के यहाँ पे GT हॉस्पिटल में वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है. इवन लैब्स भी सेकेंड ईयर के कामा हॉस्पिटल में और लेक्चर हॉल GT हॉस्पिटल में. तो जब भी प्रैक्टिकल होगा तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को GT हॉस्पिटल से कामा हॉस्पिटल जाना पड़ता है. अभी एक कितना टाइम जाता है? हाँ, तो लेक्चर के बाद यहाँ से चल के जाने में 5 या 10 मिनट लग जाते हैं. लेकिन जो भी तुम लोग हॉस्टल पे ही जाते हो. बस कॉलेज बिल्डिंग एक मेजर प्रॉब्लम है जो कि लगता है कि जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एक कॉलेज बिल्डिंग अलॉट हुआ है लेकिन वो गवर्नमेंट प्रोसीजर के कारण कुछ टाइम के लिए रुका है प्रोसीजर वो, लेकिन वो जल्दी अलॉट हो जाएगा. सेकेंड मोस्ट फेस प्रॉब्लम थी कि कॉलेज का लाइक एक प्लेग्राउंड बड़ा वाला प्लेग्राउंड नहीं है. बाकी सभी बाकी कॉलेज को एटलीस्ट कुछ प्लेग्राउंड अलॉट होता है कि यहाँ पे जिम खाना है आप लोगों का, लाइक KM को जिम खाना है, JJ को जिम खाना है, सायन को खुद का जिम खाना है. तो वैसे GT हॉस्पिटल को या GMC मुंबई को भी एटलीस्ट कोई जिम खाना अलॉट हो जाए तो वो अच्छा हो जाएगा. ये बस मेजर प्रॉब्लम है. बाकी हॉस्टल में या एकेडमिक्स में वैसा कुछ एज सच प्रॉब्लम्स तो हमें फेस नहीं हुई. तो एक लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तुम अपने जूनियर्स को या फिर जो भी अभी नीट देकर आने वाले बच्चे, तो उनको ये कॉलेज सजेस्ट करना चाहोगे या फिर दूसरे कॉलेजेस पे ये कॉलेज क्यों सजेस्ट करना चाहोगे? सो डेफिनेटली यस, आई विल सजेस्ट देम दिस कॉलेज. तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि city actually matters for the college where it is situated. So it's Mumbai. You will definitely get a different type of patients exposure and different hand-on experience, and so I will suggest this college over the other colleges. So now let's ask first year juniors, what are their reviews about the colleges, overall reviews, and what are problems they did not face as compared to their senior batch. Like उनको तो seniors थे, अभी तुम लोगों को सीनियर्स थे ना, तो सीनियर्स ने क्या क्या हेल्प की या क्या डिफरेंस आया आपको सीनियर्स होने के कारण, तो वो आप बता सकते हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपना कॉलेज जो है ये डेवलपिंग कॉलेज है और हमारा जो बैच है वो सेकेंड बैच है. तो मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ. मेरे जो सीनियर्स है अभी उनको तो सीनियर कोई नहीं था, तो उनको कोई खास करके गाइड करने वाला था नहीं. तो हमारे वक्त कैसे मतलब कि हमको वो एज सच अगर हमारा एग्ज़ाम टाइम होगा तो एज सच कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो वो मार्क करके देते हैं, या फिर कुछ सीनियर्स तो मतलब एकेडमिक्स रिलेटेड या फिर ओवरऑल स्पोर्ट्स से रिलेटेड या फिर मतलब उनका नेचर बहुत फ्रेंडली था, तो वो खास करके मतलब ज़्यादा हेल्पफुल था. एग्ज़ाम के वक्त हो या फिर चाहे कोई स्पोर्ट इवेंट के साथ हो, हम एक साथ में ऐसे एक साथ बहुत सारे मैचेस भी खेले हैं, एक साथ ऐसे घूमने भी गए हैं और बहुत मतलब इन्जॉयमेंट तो है ही यहाँ पे. आप यहाँ पे डेफिनेटली चूज़ कर सकते हो. और जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि ये डेवलपिंग कॉलेज है, तो यहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ है वो अभी इन फेज़ है, डेवलपिंग फेज़ है. वो नेक्स्ट कुछ सालों में आपको सारी फैसिलिटीज़ आपको ज़रूर से मिल जाएंगी. ओके,
तुम क्या बताना चाहोगे? कुछ अलग होगा तो? नहीं, इसने ऐसे बोला वैसे ही, मतलब तुमने क्यों चूज़ किया ये कॉलेज? मतलब दूसरे कॉलेजेस तो दूसरे कॉलेजेस भी तुम लोगों को मिल रहे थे, तुम लोगों ने, तुम्हारा रैंक क्या था? मेरा रैंक था 9727 और उसका 9763। ओके। तो तुम लोगों को दूसरे भी मुंबई के कॉलेजेस लाइक कूपर वगैरह मिल रहे थे, और जीएमसी बारामती, जीएमसी सोलापुर, जीएमसी संभाजीनगर, तो वो भी कॉलेजेस मिल रहे थे। तो एज़ कम्पेयर टू वो उन कॉलेजेस, तो तुम लोगों ने इस कॉलेज को प्रेफरेंस क्यों दिया? तो मेरा पर्सनल रीज़न था ये चूज़ करने का, खास करके हॉस्टल फैसिलिटीज़, क्योंकि अगर कूपर चूज़ करता तो मतलब आके जाके करना पड़ता और उसमें टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत था। तो यहाँ पे रह के मतलब स्टडी भी अच्छा खासा कर लेता हूँ और उससे मतलब हाँ, तो टाइम भी बहुत बचता है, और हॉस्टल से कॉलेज का मतलब बहुत कम टाइम लगता है आने जाने में, सो उसका भी कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे जो मतलब खुद से जो सीखने मिला, मतलब खुद अकेले कैसे रहते हैं और खुद का खुद कैसे करना है, वो खास करके अच्छे से सीखने मिला। इंडिपेंडेंट, हाँ। तो वो एक मेन रीज़न था ये कॉलेज चूज़ करने का, और दैट्स ओके। व्हाट आर योर व्यूज़? मेरा भी पर्सनली ट्रैवल था इशू, मतलब मेरे लिए कूपर वॉज वेरी फार, एंड यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी है, एंड ये 50 स्टूडेंट्स ही है, इसलिए तो देयर इज़ मोर, वी नो एवरीवन, हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, लाइक ऑल स्टूडेंट्स नो ईच अदर रियली वेल, और टीचर्स भी ज़्यादा हमको बच्चे कम है तो दे नो ऑल ऑफ आवर नेम्स, सबको पर्सनली भी जानते हैं, गाइड करते हैं कुछ, हाँ सब गाइड करते हैं। फिर एग्ज़ाम्स में कुछ कम आए तो दे इवन काउंसलर्स, हाँ रिविजन लेक्चर्स भी होते हैं, और यहाँ पे हमारे 2 काउंसलर्स भी अलॉटेड है, सो दे ऑल्सो हेल्प अस विद आवर मेंटल हेल्थ, अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो, एंड या दैट्स। तो तुम अपने जूनियर्स को क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि दूसरे कॉलेजेस मिल रहे होगे तो भी ये कॉलेज लोगे क्या, और जूनियर्स को तुम कैसे हेल्प करोगे? लाइक आपके सीनियर्स ने तो की, पर और क्या ऐड करोगे ताकि उनको ज़्यादा हेल्प मिले? तो अगर आप ये कॉलेज चूज़ करके यहाँ पे आते हो तो वी आर योर सीनियर्स, तो यू आर मोस्ट वेलकम। सो अगर आप यहाँ पे आप आते हो तो आपको किसी भी तरह की हेल्प हो, चाहे एकेडमिक हो या फिर कोई आपको पर्सनली टॉक करना होगा, आपका कोई इशू होगा, तो भी आप एकदम फ्रेंडली कांटेक्ट कर सकते हो। अगर किसी सीनियर ने नहीं की तो मुझसे अप्रोच कर लेना। ठीक है। और उसके अलावा आपको यहाँ पे खास करके कोई दिक्कत तो होगी नहीं, और आप यहाँ पे एंजॉय करोगे, ये मैं Like first of all, the location is really nice. It's in the heart of Mumbai. And फिर मेनली है कि बाकी कॉलेज से हमारे कॉलेज में रैगिंग नहीं होती, क्योंकि रैगिंग तो हमारे जेजे में भी नहीं होती। हाँ, सो दिस वॉज ऑल अबाउट GMC GT एंड कामा हॉस्पिटल। सो कुछ भी आपको दिक्कत हो तो neetconnect.com, उस पर आप अपने सीनियर से कांटेक्ट कर सकते हो, और जो भी आपको अगर ग्रुप ज्वाइन करना होगा और कोई भी दिक्कत होगी, मैसेजेस करनी होगी, तो मेरे टेलीग्राम चैनल, जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, और पर्सनली कमेंट कर सकते हो जो भी आपको दिक्कत होगा या फिर कोई भी प्रॉब्लम होगा। अगर बड़ा प्रॉब्लम होगा तो मैं टेलीग्राम पे कांटेक्ट करता हूँ, और अगर लाइक 1 सेंटेंस में आपको रिप्लाई दे सकूँ तो डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में ही मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। तो जो भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और आपको अगर पर्सनली किसी सीनियर से बात करनी होगी तो आप neetconnect.com पे जाके अपना सेशन रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो इफ़ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा तो लगना ही चाहिए, एफर्ट्स काफ़ी डाले हैं मैंने, मेरे जूनियर्स ने, GT के जूनियर्स ने, आपके सीनियर्स ने काफ़ी एफर्ट्स डाले, तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।